تصور کریں دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ اور ان کے اوپر بہتا ہوا ٹھاٹھیں مارتا سمندر. نہ کوئی شہر بچا، نہ کوئی انسان، نہ کوئی پرندہ. ہر طرف صرف موت اور پانی کا راج. یہ کوئی خیالی کہانی نہیں ہے، یہ انسانی تاریخ کا وہ خوفناک سچ ہے جس نے زمین کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا. یہ کہانی ہے ایک ایسی قوم کی جو اپنی طاقت کے نشے میں اندھی ہو چکی تھی. کہانی ہے ایک ایسی کشتی جو ریت کے سمندر میں بنی تھی. اور یہ کہانی ہے اس باپ کی جس نے 950 سال تک اپنی قوم کے پتھر کھائے. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کئی صدیاں گزر چکی تھیں. انسان زمین پر پھیل چکے تھے. یہ وہ دور تھا جب انسان نے پہلی بار اپنے خالق، اپنے اللہ کو بھلا کر پتھروں کو پوجنا شروع کیا. شیطان کا سب سے بڑا حملہ کامیاب ہو چکا تھا. لوگ ود، سوا، یغوث، یوق اور نصر نام کے بتوں کے آگے جھکنے لگے تھے. یہ اصل میں اللہ کے نیک بندے تھے جن کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کی یاد میں مجسمے بنائے اور پھر آہستہ آہستہ انہیں خدا مان بیٹھے. زمین ظلم سے بھر گئی تھی. امیر غریب کو کچلتا تھا اور طاقتور کمزور کا خون پیتا تھا. تم غریب ہمارے راستے نہ آیا کرو ورنہ ایک دن میرے ہاتھوں مارے جاؤ گے. انسانیت سسکیاں لے رہی تھی. ایسے گھپ اندھیرے میں اللہ نے عراق کی سرزمین پر ایک نور بھیجا. ایک ایسا شخص جو صبر کا پہاڑ تھا، حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا. ان کی آواز میں درد تھا، فکر تھی. انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو. میں تمہیں ایک دردناک دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں. لیکن جواب کیا ملا؟ ہم تو تمہیں اپنے جیسا بس ایک معمولی انسان دیکھتے ہیں. اور تمہارے ماننے والے کون ہیں؟ صرف وہ لوگ جو ہمارے معاشرے کے سب سے کمزور طبقے سے ہیں. ذرا سوچئے، 1 سال نہیں، 10 سال نہیں، 100 سال نہیں، پورے 950 سال حضرت نوح علیہ السلام دن رات ان کے پیچھے پھرتے رہے. وہ انہیں محفلوں میں سمجھاتے، وہ انہیں اکیلے میں سمجھاتے. جب وہ انہیں اللہ کی طرف بلاتے تو وہ لوگ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے. وہ اپنے کپڑے اپنے چہروں پر ڈال لیتے تاکہ نوح علیہ السلام کی شکل بھی نہ دیکھنی پڑے. لوگ ان پر راستے میں کچرا پھینکتے، ان کا مذاق اڑاتے. حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ بعض اوقات لوگ انہیں اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے، مگر ہوش آتے ہی وہ پھر کہتے، اے اللہ، میری قوم کو معاف کر، یہ نادان ہے. لیکن ڈھیٹ پن کی حد دیکھیے. باپ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر نوح علیہ السلام کے پاس لاتا اور کہتا، بیٹا دیکھ، میں بھی اس کا دشمن تھا، تو بھی رہنا. کفر نسل در نسل منتقل ہو رہا تھا. زمین اب مزید گناہ کا بوجھ اٹھانے سے انکاری تھی. جب صدیاں گزر گئیں اور نئی آنے والی نسلیں پہلی نسلوں سے بھی زیادہ بدتمیز اور فاسق نکلیں تو اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا. حضرت نوح علیہ السلام نے دل کی گہرائی سے دعا کی، اے میرے رب، میں مغلوب ہو گیا ہوں، اب تو ان سے بدلہ لے. اور فرمایا، اے اللہ، زمین پر کسی ایک کافر کو بھی بسنے والا نہ چھوڑ. یہ بد دعا ایسی تھی جس نے آسمانوں کو ہلا دیا. اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا، ہماری آنکھوں کے سامنے
और हमारी वही के मुताबिक एक किश्ती बनाओ, एक ऐसी कश्ती जो आने वाले क़यामत खेज तूफान का मुकाबला कर सके। यहाँ से इम्तिहान का एक नया दौर शुरू हुआ। कश्ती बनानी थी, लेकिन कहाँ? एक ऐसे सूखे रेगिस्तान में जहाँ दूर दूर तक पानी नहीं था। लोग आते और हंसते, ओ नूह, कल तक नबी थे, आज बढ़ई बन गए हो। इस रेत पर कश्ती चलाओगे? कौम के सरदार जब भी वहां से गुजरते वो उन पर तंज करते, फप्तियां कसते, मगर नूह अलैहिस्सलाम खामोशी से अपना काम करते रहे। उन्होंने साज के दरख्त लगाए, उनके बड़े होने का इंतजार किया और फिर उन्हें काटकर तख्ते बनाए। ये कोई मामूली नाव नहीं थी, ये तारीख का सबसे पहला देव हैकल जहाज था। इसकी लंबाई तकरीबन 300 हाथ थी। इसके 3 हिस्से डेक्स थे। निचला हिस्सा जंगली जानवरों और दरिंदों के लिए, बीच का हिस्सा चौपायों और इंसानों के लिए, और ऊपर का हिस्सा परिंदों के लिए। इसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए कीर यानी डामर का इस्तेमाल किया गया। हर कील, हर तख्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की निशानदही पर लगाया जा रहा था। लोग मजाक उड़ा रहे थे, मगर नूह अलैहिस्सलाम ने वो जवाब दिया जो आज तक गूंज रहा है। अगर आज तुम हम पर हंसते हो तो अनकरीब हम तुम पर हंसेंगे। कश्ती तैयार हो गई। अब इंतजार था उस निशानी का जो अल्लाह ने तय की थी। अल्लाह का वादा था, जब हमारा हुक्म आ जाए और तन्नूर उबल पड़े। तन्नूर वो जगह जहां आग जलाई जाती है, रोटी पकाई जाती है। वहां से पानी का निकलना कुदरत के निजाम का उल्टा होना था। एक दिन ये खतरे की घंटी थी। मोहलत खत्म हो चुकी थी। देखते ही देखते जंगल की मखलूक आ पहुंची। शेर, हाथी, चीते, सांप, परिंदे सब एक नज़्म ज़ब्त के साथ बिना किसी को नुकसान पहुंचाए कश्ती की तरफ बढ़ रहे थे। ये वो मंजर था जिसे देखकर लोगों को डर जाना चाहिए था, मगर उनकी आंखों पर गफलत की पट्टी बंधी थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों को, जो कि तादाद में बहुत थोड़े थे, रिवायात के मुताबिक सिर्फ 80, कश्ती में बिठाया। लेकिन अभी एक सबसे बड़ा सदमा नूह अलैहिस्सलाम का इंतजार कर रहा था। कुरान इस मंजर को ऐसे बयान करता है कि रूह कांप उठती है। हमने आसमान के दरवाजों को मूसलाधार पानी के साथ खोल दिया और जमीन को फाड़कर चश्मे बहा दिए। सोचिए, ऊपर से आसमान फट पड़ा था और नीचे से जमीन उबल रही थी। दोनों पानी मिलकर एक हो गए। पानी सतह से ऊपर उठने लगा। गुंजान आबादियां, शहर, महल सब तिनके की तरह बहने लगे। वो लोग जो कल तक नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते थे, आज अपनी जान बचाने के लिए चीख रहे थे, मगर आज कोई सुनने वाला नहीं था। कश्ती पानी पर उठ गई। कुरान कहता है, वो कश्ती उन्हें लेकर पहाड़ों जैसी मौजों के दरमियान चलने लगी। लहरें जो पहाड़ों जैसी थीं, तसव्वुर करें, देव हैकल तूफानी लहरें कश्ती से टकरा रही हैं, मगर अल्लाह की हिफाजत उस लकड़ी के ढांचे को बचाए हुए थी। तूफान अपने उरूज पर था। कश्ती चल रही थी। नूह अलैहिस्सलाम की नज़र अपने बेटे यानी कनान या याम पर पड़ी, जो पानी से बचने के लिए भाग रहा था। एक नबी की हैसियत से नहीं, एक बाप की तड़प के साथ उन्होंने पुकारा, ए मेरे प्यारे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों का साथ न दे। बेटे ने पहाड़ की चोटी की तरफ देखते हुए गुरूर से जवाब दिया, मैं अभी किसी पहाड़ की पनाह ले लूंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार समझाया, बेटा, आज अल्लाह के अजाब से बचाने वाला कोई नहीं सिवाय उसके जिस पर वो रहम करे। अभी बात हो ही रही थी कि उन दोनों के दरमियान एक बड़ी मौज यानी लहर आ गई और वो बेटा अपने बाप की आंखों के सामने डूबने वालों में शामिल हो गया। न पहाड़ काम आया, न जवानी, न बाप का नबी होना। जहां नस्ब खत्म हो गया, वहां सिर्फ ईमान बचा। नूह अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया।
उन्होंने अल्लाह से अर्ज की, मेरे मालिक, ये मेरा बेटा था, मेरा घर वाला था। अल्लाह ने सख्ती से फरमाया, ऐ नूह, वो तेरे घर वालों में से नहीं है, उसके अमल गलत हैं। अल्लाह ने क़यामत तक के लिए सिखा दिया कि रिश्ता खून का नहीं, रिश्ता दीन का होता है। सब कुछ खत्म हो गया, जमीन धुल चुकी थी, शिर्क और कुफ्र का नामो निशान मिट चुका था। फिर अल्लाह का जलाल जमाल में बदला। हुक्म हुआ, ए जमीन अपना पानी निगल ले और ए आसमान थम जा। सूरतुल हूद। पानी सूखने लगा, कश्ती आहिस्ता आहिस्ता जोदी पहाड़ पर आकर रुक गई। ये आज के तुर्की यानी टर्की के इलाके में वाक़ है। 10 मुहर्रम यानी आशूरा का दिन था जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी कश्ती से उतरे। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और रोज़ा रखा। इस नई दुनिया में अब सिर्फ मुवहिदीन यानी एक अल्लाह को मानने वाले थे। इसीलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी यानी दूसरा आदम कहा जाता है, क्योंकि आज हम सब उन्हीं की औलाद में से हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती सिर्फ लकड़ी का ढांचा नहीं थी, वो ला इलाहा इल्लल्लाह की कश्ती थी। पानी का वो तूफ़ान आज चला गया है, मगर गुनाहों और फितनों का तूफ़ान आज भी हमें घेरे हुए है। इस वाक़ये से हमें 3 बड़े सबक मिलते हैं। सब्र और इस्तिक़ामत। 950 साल की मेहनत। हम थोड़ी सी कोशिश के बाद मायूस हो जाते हैं, मगर नूह अलैहिस्सलाम ने सिखाया कि नतीजा अल्लाह के हाथ में है, कोशिश हमारे हाथ में है। बुरी सोहबत का अंजाम। नबी का बेटा भी अगर बुरे लोगों के साथ बैठेगा तो वो नबी का बेटा होने के बावजूद डूब जाएगा। अपनी दोस्ती, अपनी सोहबत सोच समझ कर चुने। कश्ती नजात। आज हमारे लिए नजात की कश्ती कुरान और सुन्नत है। जो इस पर सवार होगा वो बच जाएगा, जो इससे पीछे रह जाएगा वो ज़माने की मौजों में अलर्क हो जाएगा। दोस्तों, वक्त आने पर पहाड़ भी नहीं बचाते, सिर्फ अल्लाह बचाता है। फैसला आपका है, क्या आप कश्ती में सवार होने के लिए तैयार हैं?